ओके गाइस, सो वी मूविंग ऑन टू लेक्चर 18। आज मैं कुछ आपके साथ टेबल्स शेयर करने वाली हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं, राइट? सो व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर गोइंग टू इफेक्ट द और विच इज गोइंग टू alter the inductive effect, and what is the you can say what is going to be the इफेक्ट ऑफ इट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग पीकेए वैल्यूज के साथ सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं वो करेंगे। लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन ओवर हियर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्लासेस, एंजॉइंग दीज क्लासेस। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर करो एंड ऑल्सो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे लोग बट लाइक नहीं कर रहे हैं। सो योर लाइक्स आर गोइंग टू हेल्प me grow my channel and give you the best. So inductive effects of substituent groups of some substituted acetic acids we are going to talk of. Like first of all, अगर suppose हमारे पास simple acetic acid है CH2COOH, ठीक है? तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ CH3COOH की जो pKa वैल्यू होती है, the pKa value of this is going to be 4.75. Okay, and we are going to study कि कौन सा I effect होगा on the substituent. Now over here क्योंकि हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो H is going to be the reference point, guys. रेफरेंस पॉइंट आपको पता है पीकेए वैल्यू के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या होता है। अगर पीकेए वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी लेस। ओके, so in the first case, what we are doing is we are substituting hydrogen with the CH3 group. So we have CH3, we have CH2, we have COOH. So the substituent which we are taking over here is the CH3. Over here the pKa value increases by 4.90 और आपको पता है कि CH3 is electron donating, so ये plus I effect show करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, पीकेए वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर जिसमें हम लोग अगेन सब्स्टिट्यूएंट को करने वाले हैं चेंज। सो हम लोग यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप ले रहे हैं CH3O, CH2COOH. So the substituent in reference to hydrogen हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, मिथॉक्सी. We will see that the pKa value decreases to 4.30. Therefore the acidic strength is going to increase and the effect जो यहाँ पे show हो रहा है that is the minus I effect, right? अब अगर हम लोग इधर ले लेते हैं substituent को as iodine, so we are taking over here iodine. Iodine is again going to be electron withdrawing in nature. We have CH2 and we have COOH. The pKa values कम हो जाती हैं 3.00, therefore the acidic strength is going to increase and the kind of effect जो कि ये show कर रहा है that is the minus I effect. Okay, now अगर हम लोग let's take a few more examples over here by by taking more substituents over here. तो अगर हम यहाँ पे आयोडीन की जगह हम कंसिडर करते हैं ब्रोमीन, right? So bromine is more electronegative than iodine. The pKa value still goes down, so it is 2.90, and the effect definitely is going to be the minus I effect, right? So what can what can you see from here? You can see कि जितना ज़्यादा electron negative जो है वो present है as a substituent amongst the halogens, the acidic character is going to increase. उसी तरह से अगर आप क्लोरीन लेते हो तो क्लोरीन CH2COOH pKa value slightly down जाती है, although it's not a great decrease over here, but still there is a decrease and the effect is going to be minus I. And if we're taking over here trimethylamine as the substituent, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH3 whole thrice N positive and CH2COOH.
the pKa value goes down still, so minus it's going to be 1.80. acidic strength हो गई हमारी increase, और जो effect ये show करता है minus I. So अगर आप इन दोनों को देख रहे हो, we looking at the first one, plus I effect में there is going to be increase in the pKa values, therefore the acidic strength is going to decrease. But minus I में reference अगर हम 4.75 ले रहे हैं तो minus I effect में हर जगह the pKa value that is decreasing which is increasing the acidic strength. तो हम लोग बोल सकते हैं कि minus I effect जो है that is directly proportional to the acid strength. तो इनमें क्वेश्चंस में जो ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इन योर कॉम्पिटिशन्स, तो उसमें आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि माइनस आई इफेक्ट कितना ज़्यादा हो रहा है. जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. फिर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो है वो भी इफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को. सो लेट्स से अगर हम लोग ले रहे हैं CH3 CH2 CH. So this is the alpha carbon atom which we have, and the chlorine is present at the alpha carbon atom. In this case, the pKa value is 2.84. Of course, it is again going to show minus I effect. ठीक है. अगर position इसकी बीटा पे चली गई, that is we have CH3 CH Cl CH2 and COOH. ठीक है. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4.06 minus I effect. So you can see that the pKa value is considerably increasing, therefore the acidic strength is going to decrease. Gamma पे अगर चला जाता है तो gamma position पे क्या हो रहा है, let's see. Gamma position पे pKa value और ज़्यादा increase होने वाली है. So we have CH2. This is the gamma position which we have. Chlorine, CH2, CH2, COOH. So it's seen that the pKa value that comes to 4.52, although this is also going to show the minus I effect. So if you're looking at this slide, जितनी दूर chlorine जाता है from the alpha carbon atom or from the functional group, तो उतना ही pKa value is going to increase and the acidic strength is going to decrease. So substituent जो alpha carbon atom पे होगा, that is going to be the most acidic. Okay. Now, what is the distance? How does the distance between the groups and the extent of inductive effect related to each other? Now, अगर आपके पास यहाँ पे suppose हमारे पास है oxalic acid. So, oxalic acid होगी COOH and COOH. ठीक है. So, अब यहाँ पे the pKa value that is 1.23 and the effect is minus I. इसके बीच में अगर हम लोग एक और CH2 लगा दें, that is both the carboxylic acid groups they have gone further apart, COOH. So you will see that the pKa value is going to increase 2.28, although it is also showing minus I effect. Now if we are adding another CH2, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स को और दूर कर रहे हैं. इन दिस केस the pKa value is going to considerably increase, although it is showing minus I effect. So if we're looking at this and we're looking at these numbers over here, it very clearly indicates कि inductive effect जो है वो है distance dependent. जितना ज़्यादा distance होगा उतना कम inductive effect होगा. ठीक है. और जितना कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है that is inversely proportional to the distance between the two carboxylic acid groups. ओके. तो जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है या जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है और उतना ही एसिडिक कैरेक्टर भी कम होता है. देन एडिटिव नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. एडिटिव नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज हमारे पास 1 माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है या हमारे पास 2 माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है या हमारे पास 3 माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं,
तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरह से इफेक्ट करता है. सो टू अंडरस्टैंड दिस वी आर अगेन टेकिंग रेफरेंस. तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन इज टेकन एज द रेफरेंस और इसकी पीके वैल्यू तो अब आपको बाय हार्ट लर्न हो गई होगी, विच इज 4.75. H is going to be the रेफरेंस पॉइंट ओवर हियर. ठीक है. सो हम हाइड्रोजन को गाइस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं विद, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट विद क्लोरीन. So we have chlorine, CH2, COOH minus I effect. The pKa value is 2.86. So this is going to show minus I effect. ये एक क्लोरीन है. अगर हम दूसरे को भी सब्स्टिट्यूट कर दें, दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, विच मीन्स कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं या दो हेलोजेंस प्रेजेंट हैं, तो हम देखेंगे कि पीकेए वैल्यू हो जाती है डिक्रीज. तो देयर आर 2 माइनस आई इफेक्ट ओवर हियर. तो 2 माइनस आई इफेक्ट होगी तो गाइज व्हाट इज हैपनिंग? 2 माइनस आई इफेक्ट से पीके वैल्यू हो रही है डिक्रीज, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ हो रही है इंक्रीज. अगर हमारे पास 3 है, ओके, सो वी हैव COOH और ये हमारे पास आ गया 0.65. तो क्या हो रहा है? पीके वैल्यू और डिक्रीज हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएंगी. सो ओवर हियर देयर आर 3 माइनस आई इफेक्ट. समझ में आ गया ना कि अगर कोई भी नहीं है तो पीके वैल्यू सबसे ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम. अगर एक है तो पीके वैल्यू हो रही है डिक्रीज, दो है तो और डिक्रीज, और तीन है तो और डिक्रीज. And acidic strength will considerably keep on increasing. Then we have aromatic acid and inductive effect. So aromatic acid and inductive effect may, let's again take a reference of hydrogen. So we are taking over here benzoic acid. ठीक है. पीके वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट सेम होती है एज एसिडिक एसिड, 4.2. उसकी 4.75 है, इसकी 4.2 है. तो यहाँ पे हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन इज टेकन एज द रेफरेंस, राइट. अब यहाँ पे ऐड कर दिया उन्होंने, एग्जामिनर्स ने, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो ट्राई मिथाइल अमीन को एज अ सब्स्टिट्यूट ले लिया, विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट तो पता ही है हमें होता है, बट दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द पीकेए वैल्यू, मतलब इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. सो ये आ गया माइनस आई इफेक्ट. ठीक है. देन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है? सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O and OH. ठीक है. 4.75 कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? प्लस आई. अब यहाँ पे हमने इसका हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया ड्यूटीरियम. तो हमारे पास कंपाउंड है CD3C डबल बॉन्ड O and OH. तो पीकेए वैल्यू सरप्राइजिंगली थोड़ा सा कम होता है, ऑल्दो प्लस आई इफेक्ट ही है. ओके. सो प्लस आई इफेक्ट जो ड्यूटीरियम का है वो स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. सो उसकी वजह से पीके वैल्यू हो रही है डिक्रीज, और क्योंकि पीके वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या होगा? वेरी गुड, एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होने वाला है? तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कर रहे हैं और उनको इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमने वी आर नाउ टॉकिंग ऑफ अल्कोहल्स इंस्टेड ऑफ एसिड्स. तो अगर हमारे पास ये आ गया CH3OH, the pK value of this is going to be 15.5 and CH3 is electron donating. तो ये हो जाएगा यहाँ पे सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये हो गया प्लस आई इफेक्ट. ठीक है. अब इधर अगर हम लोग
यूज करें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप F3C CH2 and OH. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं विड्रॉ, pKa वैल्यू हो रही है डिक्रीज, इफेक्ट हो रहा है माइनस आई इफेक्ट, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ हो रही है इंक्रीज. नाउ इफ वी हैव टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास है F3C, ये डबल बॉन्ड नहीं है, अच्छा इसको उस तरह से नहीं सोचना आपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने यहाँ पे शो किया है, तो हमने F3C ले लिया, C और एक और F3C ले लिया, एंड वी हैव H एंड वी हैव OH. सो अब pK वैल्यू को क्या होगी, फर्दर डिक्रीज 9.3 माइनस आई इफेक्ट ऑफ कोर्स, बट द एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग. ठीक है, नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द थर्ड हाइड्रोजन ऑल्सो विद द CF3. So now we have CF3 and C and CF3. So there are 6 electron withdrawing groups which are present over here, and OH. Subsequently, the pKa value is going to decrease. Of course, it's minus I effect, but the acidic strength is increasing. So, electron withdrawing groups अगर present है, तो वो acidic strength को increase करेंगे in case of alcohols. ठीक है, hybridization state जो कार्बन की होती है in the substituent, वो भी इफेक्ट करती है इंडक्टिव इफेक्ट को. ओके, तो अगर सपोज हमारे पास है, लेट्स से दैट वी हैव अ साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट ओवर हियर, और देन वी हैव OH. ठीक है, अब इसकी pKa वैल्यू जो है दैट इज 16. सो क्योंकि साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे है, दिस इज गोइंग टू शो प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, बट अगर इधर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी गाइस, दिस इज sp3. सो डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो जाती है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो वी हैव अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, pK value comes down to 15.5 एंड प्लस आई से ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई इन केस ऑफ sp2. ठीक है, और व्हाट विल हैपन अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, okay, so this is 13.5 and this is going to show minus I effect. So एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा एक ऑर्बिटल का, ज्यादा स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन को करता है होल्ड. ओके, सो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तभी वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर. फिर उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, उसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज होगी और हाइड्रोजन कैन बी इजिली डोनेटेड. तो अगेन 16 से हम 15.5 पे गए और फिर 13.5 पे गए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स एंड द बेस स्ट्रेंथ, किस तरह से जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बेस स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड.